Previous class we have discussed about Garva Vikriti. What may be the reasons or the causes due to which there may be a congenital enemy, and for this Acharya has explained in different format that if the viharas are not been maintained during Rajasrava Kala, that is one reason. Having coitus during menstrual cycle, that may also have impact. Then due to doshik vitiation, and then due to during the coitus, if there is in the female, if there is any kind of desireness, like she is very too hungry, okay, in those cases we have seen what may be the congenital anomalies or that may lead to Garva Vikriti we have seen. Now there are certain other congenital anomalies what we learn in genetics, what we read in genetics, okay, and those format of diseases has been explained by our acharyas in terms of bija dosha, bija bhaga doshas and bija bhaga avayava doshas. ठीक है? So there may be deformity or in the sperm itself, okay, or it may be in the ovum itself, or it may be in bija bhaga. ठीक है? So the part of the bija, or it may be in the bija itself, or it may be in the part of the bija, or it may be in one of the segment of the part of the bija itself, there may be a deformity or doshas. So जहां पे बीज भागा का बात कर रहे हैं वहां पे हम फंक्शनल डिफॉर्मिटी का अप्रोच हम लोग ले सकते हैं. ठीक है? और जो भी हमारे ऑफस्प्रिंग होंगे उस पे या तो फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज हो सकता है, और दूसरा है बीज भाग अवयव, यानी कि एनी पर्टिकुलर सेगमेंट इन द पार्ट ऑफ द बीज देयर में बी एन structural deformity in the offspring. And then acharyas have explained about different congenital the causative factors of different congenital anomalies, like there may be bija dosha. Then they have brought the concept of atma karma, okay. So in the, if there is dushti in the shukra as well as artava, ठीक है, or your previous deeds also is equally responsible for the anomalies in your offspring. Then ashaya dosha, like purva jana karma phalas, okay, and kala dosha, if there is any abnormality in the ritu kalas, that also may lead to anomalies in your offspring. And if the mother during pregnancy, Garbhini Paricharya Kala, if she is not following the proper diet habits or diet regimen, that may also leads to the anomalies on the offspring. Okay, and then we will study in specific. I think this slide you have written. Now we will move to structural deformities. It may be ancephaly, okay, spina bifida, and so on, encephalocele, like that many structural deformities been explained. Now with respect to acharyas itself, what he says is due to, if it is due to bija bhaga, so we have seen due to, if there is dushti of shukra and shonita itself, that may lead to structural and functional deformity in the offspring. If it is due to bija bhaga, so dushti of bija bhaga and bija bhaga avayava will lead to varta. Okay, that means it's something like a female having a male character or a male having a female character. Okay, then what acharya says is shonite गर्भाशय बीज भाग. सो बीज भाग का अगर प्रदोष होता है, अगर दूषित होता है, तो इट विल लीड टू इनफर्टिलिटी.
और अगर ये शोणित का बात कर रहा है यानी आर्तव का, ठीक है, और अगर गर्भाशय मतलब ओवम के किसी सेगमेंट में अगर कोई दोष है, गर्भाशय बीज भाग अवयव अगर उनमें दूषित है, तो पूति प्रजा, पूति प्रजा का मतलब हो गया, पूति प्रजा कहीं पे लिखाया हूं, पूति प्रजा it will no in artav also I have written this will also lead to एक वार्ता मैंने एक टर्म ही लिखा है, देखो देख लेना उसको, that will also lead to congenital anomalies, ठीक है। तो ये विथ रेस्पेक्ट टू शोणित है, अगर ओवम में के किसी पार्ट में अगर दोष है तो या तो इनफर्टिलिटी होगा, या तो पूती प्रजा होगा, या तो वार्ता होगा। ये तीन चीज याद कर लेना। अगर बीज भाग में दुष्टि होगा, ठीक है, अगर बीज में दुष्टि है तो भी वंध्यत्व होगा, इनफर्टिलिटी। अगर बीज भाग में दुष्टि होगा तो भी इनफर्टिलिटी, और बीज भाग अवयव उसमें अगर होगा तो पूती प्रजा। और बीज भाग में अगर और या वार्ता, या वार्ता का मतलब होता है मेल हैविंग फीमेल कैरेक्टर, ठीक है, एंड अ फीमेल हैविंग मेल कैरेक्टर। तो ये चीज जो है बीज दोष के बारे में, इफ देयर इज अ abnormality in the or bija or the part of the bija. Now we will move towards if there is दुष्टि। ये हो गया है, पॉज कर दो। स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी या स्ट्रक्चरल एनोमलीज में मॉडर्न साइंस में कुछ ऐसे टर्म्स आपको मिलेंगे जब हम एम्ब्रियोलॉजी को मंथली डेवलपमेंट में जाएंगे, एंड उसके जो डिफॉर्मिटीज होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन विद रेस्पेक्ट टू आयुर्वेदिक साइंस भी हम स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी को, कुछ एक चीज होता है जिसको हम बोलते हैं मुलेरियन डक्ट, ठीक है। तो जब मीसोडर्म से जो कुछ भी उत्पत्ति होता है, जब नीचे के ऑर्गन्स को जब उसका निर्माण करता है मीसोडर्म से, ठीक है, जैसे हो गया आपका ब्लैडर हो गया, यूट्रस हो गया, तो इन सब चीजों का जब निर्माण होता है, अगर उसमें स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी आ गया तो कौन कौन से बीमारी होते हैं? एजेनेसिस, जो सर्वाइकल एजेनेसिस, सर्विक्स का जेनेसिस ही नहीं हुआ, जन्म ही नहीं हुआ, ठीक है। कभी कभी देखते होंगे बच्चा पैदा होने के बाद इनपरफोरेटेड एनस, गुद का दो जो द्वार है एनल केनाल वो खुला ही नहीं हुआ है, वो ऐसे ही बंद है, ये भी होता है, ठीक है। यूट्राइन सेप्टम, देन ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम, इन सब का एजेनेसिस हो जाना, ठीक है। बाइकॉर्निक्वेट आर्टरस या हाइमेन का इनपरफोरेशन, ठीक है। उसके बाद वेजाइनल सेप्टम या वेजाइना का अबनॉर्मल, इसमें स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी होना, जेनिटल एरिया का न खुलना, ठीक है। तो क्लोज लेबियस मेजोरा या क्लोज लेबियस माइनोरा दोनों एक, उसका बाइफर्केशन ही नहीं हुआ है। यूनिकॉर्निक्वेट यूट्रस, तो ये सब एक अलग अलग स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज है, ठीक है। यूट्रस के यूनिकॉर्निक्वेट, बाइकॉर्निक्वेट, इस तरह के अलग अलग जो है, ये आपको अभी लिखने की जरूरत नहीं है। एक और रेफरेंस है बीज भाग अवयव दोषा का, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस में? स्त्री का, ठीक है। अगर oogenesis में कोई दिक्कत है, ठीक है, अगर पुरुषस्य, अगर स्पर्मेटोजेनेसिस में अगर कोई दिक्कत है तो आचार्य कहते हैं एवं एव पुरुषस्य यदा
बीज बीज भाग प्रदोषम आपद्यते तथा वंद्य जनति। मेल इनफर्टिलिटी, अगर बीज भाग में अगर कोई दोष है तो मेल इनफर्टिलिटी से पीड़ित होंगे। यदा पुनरस्य बीज भाग अवयः प्रदोषम आपद्यते, तो होगा पूति प्रजा। तो पूति प्रजा मतलब चाइल्ड डाइज आफ्टर डिलीवरी ड्यू टू कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी। ठीक है। यदा स्वस्य बीज भाग अवयः पुरुषकराणाम च शरीर बीज भाग एक देश प्रदोषम आपद्यते तदा पुरुषः आकृति भूयिष्ठं पुरुषं तृण पुत्रिकं नाम जनयन्ति ताम। पुरुषस्य व्यापादः आचक्षते, यानी कि ये चरक संहिता का रेफरेंस है, सुश्रुत का नहीं है, ये याद रखना। विथ रेस्पेक्ट टू बीज दोष बीज भाग अवयव दोष, इसने चरक ने एक्सप्लेन किया है बेहतर तरीके से। क्या हुआ सुब्रत? यू आर नॉट वेल? तो सेम थिंग है विथ रेस्पेक्ट टू, जैसा हमने फीमेल में देखा था कि अगर बीज भाग में अगर दोष है तो इट विल लीड टू मेल इनफर्टिलिटी, और बीज भाग अवयव में दोष है तो इट विल लीड टू पूति प्रजा। और एक और शब्द यूज किया गया है बीज भाग अवयव में, दैट अगर इसमें दुष्टि है तो जो फैक्टर मैस्कुलाइन कैरेक्टर देता है वो एब्सेंट रहेगा। ठीक है। हो सकता है तृण पुत्रिका, हो सकता है वो मेल है लेकिन मैस्कुलाइन कैरेक्टर नहीं है, मेल के कैरेक्टर नहीं है, उसमें फीमेल है लेकिन फीमेल के कैरेक्टर नहीं है। सेम थिंग। तो वहां पे क्या यूज किया है? वर्ता। और यहां क्या यूज किया है? तृण पुत्रिकम। ठीक है। गर्भाशयो अष्टमम भवति। So which is the 8th आशय? या लिखो अष्टमम आशय भवति। गर्भाशय इज द 8th आशय। 8th आशय लिखो, रेफरेंस लिख लो, सुश्रुता संहिता 5th चैप्टर 8th श्लोक। सुश्रुता संहिता 5th चैप्टर 8th श्लोक। ठीक है। लिखो, in females गर्भाशय is the 8th आशय। गर्भाशय is the 8th आशय। एट्थ 8वां आशय है। ठीक है। गर्भाशय 8वां आशय कहलाता है। ठीक है। इट कैन बी कोरिलेटेड टू यूटरस, ओवरी, fallopian tube,
यूट्रस, ओवरी, जितने भी उसके पार्ट हैं। गर्भाशय का मतलब ये नहीं कि सिर्फ यूट्रस लेना है, फैलोपियन ट्यूब भी है, उसका ओवरी भी है, ठीक है। यूट्रस, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, एंड वेजाइनल कैनाल। लिखो शेप ऑफ द यूट्रस, शेप ऑफ गर्भाशय। शेप, लिखो शंख, नाभ्य आकृति, शंख नाभ्य आकृति, लाइक कॉन्च शेल। मतलब शंख, शंख तो पता है ना सबको। और यूट्रस में जितने भी उसके जो ब्लड सप्लाई जाते हैं ना, जैसे ये यूट्रस है ना, तो इसके जितने भी यूट्राइन बैग जो जिसके जो ब्लड सप्लाई बनते हैं, ओवेरियन आर्टरी एंड यूट्राइन आर्टरी, तो उसको बोला गया आर्तवाह नाड़ी, ठीक है। लिखो, तो शंख में जो रिंग जैसे दिखते हैं ना बाहर से,